Hi 8th class. 8th class, look at the picture carefully. What is this? This one is also the another picture. What it shows? This one also, this one, and this one also. Students, now tell me, do you find anything common in these items? Huh? What are they made of? I'm again repeating. Do you find anything common in these items? What are they made of? The ground on which we walk, make buildings, and grow plants is made of rocks. So students, all the rocks in the world are made of chemicals, are called minerals. If you look at the rock through a microscope, you will find that it is made of crystals, okay, of various minerals packed together. Got it? Now student, this is the another picture. What is this? What is this, student? This one also. This is solar panel, okay, windmill, tidal mill, geothermal power plant, hydro generator. These are the natural resources. Got it? What is natural resources, student? Students, nature has provided us many things like air, water, forests, wildlife, and sunlight that prove useful to us in many ways. These gifts are called natural resources. Is that clear? So students, we will read minerals and natural resources in this chapter. The name of the chapter is Minerals and the Natural Resources. Got it? Now student, this is our chapter. Let's start the chapter. Okay students, now this is our chapter 4, Minerals and Power Resources. Got it? And I am writing the some main learning objectives that we will read in this chapter. The first one, we will read what are minerals. What are mineral resources? Okay. And the second one, classification of mineral resources. Classification of mineral resources. And the third one, extraction of minerals. Extraction of minerals. Okay, and important minerals. Important minerals. We will read these main topics in this video. Okay. Okay student, before starting the chapter, I showed you some pictures about the minerals. Okay. Got it? Now students, what is the meaning of minerals? ये minerals है क्या? What is the meaning of minerals? Huh? A mineral is a natural. Mineral is a natural occurring substance
ऑकरिंग सब्सटेंस कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस। ओके, ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं, अर्थ सरफेस। गॉट इट? मिनरल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये सॉलिड में भी मिलते हैं हमें और लिक्विड में भी और गैसियस फॉर्म में भी। ओके, गैसियस फॉर्म में भी मिनरल मटेरियल और ऑन द अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में ये अर्थ क्रस्ट, ये मिनरल्स हमें इन तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? मिनरल्स इट इज क्रिएटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रकृति में ये अपने आप बने हैं, प्रकृति नेचुरल द्वारा अपने आप बनाए गए हैं, नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके स्टूडेंट्स, मिनरल्स आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर वैल्यूएबल, इनकी बहुत वैल्यू है। आपको पता है वी यूज डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से मिनरल्स यूज़ करते हैं। आपको पता है, आपके अपने घर में भी देखो, गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये बहुत से ऐसे मटेरियल हैं, ये मिनरल्स ही हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एंड दीज आर ऑल्सो द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ओके, वन मोर थिंग आई ऑल्सो वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स, ये जितने भी मिनरल्स हैं ये हमेशा खुदाई करके निकाले जाते हैं। ओके, दिस पिक्चर ऑलरेडी शोज यू कि कैसे उनको निकाला जा रहा है। दिस ऑल्सो पिक्चर शोज यू स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ऑल मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म। ज़मीन से जितने भी खुदाई करके ये मिनरल्स निकाले जाते हैं ये प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। ओके, एंड और ये जो इनकी इम्प्योर फॉर्म होती है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मिनरल्स इज़ नॉन एज और ये और होते हैं मिनरल्स के, मीन्स इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मिनरल्स इज़ नॉन एज और ऑफ दैट मिनरल्स। इज दैट क्लियर? एंड द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, और जो प्रोसेस होता है ज़मीन से इनको निकालने का, दैट इज़ नॉन एज माइनिंग। इसको माइनिंग बोला जाता है। एंड द डीप होल्स डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट मिनरल्स आर कॉल्ड माइन्स। ओके, और जो डीप होल डग्स, जो बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा जाता है और जब वहाँ से इनको निकाला जाता है उसको माइन्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, वन मोर थिंग, जितने भी हम डेली लाइफ में चीज़ों को यूज़ करते हैं दैट आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। साल्ट से लेके कंप्यूटर तक जितनी भी लाइफ में हम यूज़ करेंगे चीज़ों को, वो सभी के सभी मिनरल्स होती हैं। ओके, डू यू नो स्टूडेंट, द साल्ट इन आवर फूड, जो भी हमारे फूड में हम साल्ट को यूज़ करते हैं, एंड ग्रेफाइट, जो पेंसिल के बीच में जो जिससे हम लिखने में यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट इन आवर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स। ओके, ये भी क्या है? मिनरल्स ही हैं। गॉट इट फ्रेंड्स? मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ये क्या होती है? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल के मिलने से बना होता है ये कंपोजिशन, एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, एंड हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। Okay, it means each mineral has also some distinctive
फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज क्या होते हैं इनमें? कलर, डेंसिटी एंड हार्डनेस ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड, और इन्हीं से क्या करते हैं हम इनकी पहचान करते हैं. ओके स्टूडेंट, वन मोर थिंग, मिनरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल. एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं. इट मीन्स अगर ये एक बार में ख़त्म हो गए तो बार बार ही हम इनको पा नहीं सकते. इनका एक टाइम पीरियड होता है. रिन्यूएबल, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल. एंड इंक्लूड मेटल्स. कौन कौन से मेटल हमें? सच एज आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. And non-metals such as salt, clay, gypsum and phosphates. Okay, these are the metallic minerals, and non-metallic are salt, clay, gypsum. Got it? Friends, there are more than 3000 minerals on the surface of the earth. अब करीबन इतने मिनरल्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं on the surface of the earth. Got it? Minerals can be classified on the basis of their physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण ही इनको क्या किया गया है? बांटा गया है. सच एज कलर, डेंसिटी एंड हार्डनेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो मिनरल टाइप्स ऑफ मिनरल्स. सो मिनरल्स आर द टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज मेटालिक मिनरल. ओके, and second one is non-metallic. Minerals. What is meaning the metallic minerals? It means minerals which contain a metal in its raw form. ये क्या होते हैं? contain a metal. इनमें metal होता है. ओके, एंड मेटल्स, ये मेटल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इज दैट क्लियर? एंड नॉन मेटल मिनरल्स डज नॉट कंटेन अ मेटल. जिनमें मेटल नहीं होता, डज नॉट कंटेन अ मेटल. और ये क्या क्या हो सकते हैं? सच एज कोल. मिनरल्स which do not contain metals are called non-metallic. Okay, and they are generally bad conductor of heat and electricity. Limestone, nitrate, sulfate, mica, potash, coal, salt and gypsum are example of the non-metallic minerals. Students, one more thing, metallic minerals also divided into two types. First one is ferrous and the second one is non-ferrous. चलो हम इसको बिल्कुल खोल के समझते हैं इन चीज़ों को. ओके, व्हाट आर दीज थिंग्स? स्टूडेंट्स, मेटालिक मिनरल्स, you know very well the metallic minerals contain metals in its raw form. Contain a metal in its raw form. In its raw form. Okay, it means they are found as ore. It means मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं और उसी इम्प्योर फॉर्म को क्या बोला जाता है? और बोला जाता है. ओके, और इट मीन्स दे आर फाउंड एज और, सच एज आयरन और, बॉक्साइट एंड मैग्नीज और. इज दैट क्लियर? वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, metals
आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग. डक्टाइल, इट मीन्स, डक्टाइल मीन्स इनको वायर में चेंज किया जा सकता है. ओके. एंड गुड कंडक्टर, और एक बहुत अच्छे गुड कंडक्टर हैं. किस चीज़ के? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Got it? Okay, students. The ores are extracted from the earth through mining. Metals are then separated from the ore through smelting. Okay. Students, metals like gold, silver, tin, copper, lead, zinc, iron, nickel, and aluminium are obtained from metallic minerals. ओके. ये सभी के सभी क्या है? हम कहाँ से मिलते हैं? हमें मेटालिक मिनरल्स. एंड दीज मिनरल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस, और ये क्या है? बिल्कुल हार्ड सब्सटेंसेस. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दे हैव लस्टर और शाइन. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Metallic minerals can be further subdivided into two types. The first one is ferrous and the second one is non-ferrous. What is the ferrous? Students, ferrous minerals contain iron, as an element. Okay. And non-ferrous minerals are those which do not contain iron, जिनमें आयरन नहीं होता. और इनमें क्या होता है? आयरन होता है, इनमें नहीं होता. एंड दीज आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, zinc, tin and manganese, etc. Is that clear? Friends, and non-metallic minerals, I already told you that are those do not contain metal. Okay, जिनमें metal नहीं होता है. These include sand. For example, क्या क्या हो सकते हैं ये? Sand, लाइमस्टोन. लाइमस्टोन का क्या यूज़ किया जाता है? आपको पता है? लाइमस्टोन इज यूज टू मेक सीमेंट. क्यों लाइमस्टोन सीमेंट से? लाइमस्टोन, माइका, सोपस्टोन एंड सॉल्ट, ग्रेवल, gypsum. These are the non-metallic minerals. And one more thing, the minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals, which are coal, petroleum. Okay, these are also non-metallic minerals. Okay, students, I want to tell you the one more thing. Minerals are found throughout the world in the earth crust, but at most places they are found in extremely small quantities. It means, आपको पता है, देखो मिनरल्स पूरी अर्थ क्रस्ट पे तो
हर जगह मिलते हैं, बट वो स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं. सो जियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर, जियोलॉजिस्ट ने क्या किया, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स टू फाइंड आउट द एरियाज वेयर अ मिनरल फाउंड इन कमर्शियल विएबल क्वांटिटी. इट मीन्स उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि एक अच्छे तरीके से कहाँ पर, किस जगह पर मिनरल्स को पाया जा सकता है, ताकि उसको कमर्शियल यूज़ पर अच्छी तरह से उनका कमर्शियली उनका यूज़ किया जा सके. ओके स्टूडेंट्स, जियोलॉजिस्ट मीन्स जो मिनरल्स का पता लगाते हैं. अडॉप्ट मेथड्स, अब उन्होंने मिनरल्स को बाहर अर्थ क्रस्ट से निकालने के लिए बहुत से मेथड को अडॉप्ट किया गया है. एंड दीज मेथड्स आर रिमोट सेंसिंग, and the second one is aerial photography. Okay, aerial photography and satellite images. और एक सैटेलाइट से भी इमेजेस आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, उनसे भी पता लगता है कि मिनरल्स इस जगह पर मिल सकते हैं. ओके, इमेजेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन. इज दैट क्लियर? आर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. गॉट इट? एंड स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो कंडक्ट जियोकेमिकल सर्वे बाय टेस्टिंग द सोयल. ओके, तो और क्या चीज़ यूज़ करते हैं? जियोकेमिकल सर्वे. किसके लिए? बाय टेस्टिंग द सोयल. ओके, एंड डिफरेंट केमिकल्स ऑन सोयल एंड वाटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स. इज दैट क्लियर? एंड वन मोर स्टूडेंट्स, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. कैसे निकाला जा सकता है इनको? माइनिंग से, ड्रिलिंग से और क्वेरिंग. ओके, ये तो इनके क्या है, मेथड्स हैं कि कैसे वो उनको ज़मीन से निकाले जाएंगे. लेकिन उनमें जो मेन प्रोसेस है वो ये भी यूज़ होता है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग. इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं when the ores are found very close to the earth surface, जो कि अर्थ सरफेस के बिल्कुल ही पास में पाए जाते हैं. they are just dug out, खोदते ही उनको निकाला जा सकता है. ओके, एंड दिस कॉल्ड सरफेस माइनिंग और क्वेरिंग, और इसी को बोला गया है सरफेस माइनिंग. इट मीन्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, when the ores are found very close to the earth surface, they are just dug out. This is called surface mining, and this picture also shows the process of surface mining or quarrying. Is it clear? और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि मशीन से ही लार्ज ओपन एरिया में से उनको निकाला जाता है. इट मीन्स व्हेन द ओर डिपॉजिट्स आर वेरी लार्ज, अ लार्ज ओपन पिट इज क्रिएटेड विद अर्थ मूविंग मशीन्स, एंड दिस इज कॉल्ड ओपन पिट और ओपन कास्ट माइनिंग. ओके, आई ऑलरेडी told you about the mining, and this picture, what it shows? This picture shows the process of open pit and or open cast mining. This picture also shows the open pit or open cast mining. Explosives are used to break up the ore material to make it easier to remove and carry it away from the ground to the refining sites. Is that clear? Students, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है? इस पिक्चर में आपको क्या पता लग रहा है? What is this? In this picture, as mining continues, the pit becomes a very large ball-shaped hole in the earth surface. क्या होता है कि जब मिनरल्स को बार बार निकालते रहते हैं तो वहाँ वो एरिया, आसपास का एरिया कैसा हो जाता है? बिल्कुल ऐसे एक बॉल शेप की तरह हो जाता है. When the ore is found in a wide area,
बट इट्स नॉट वेरी डीप इन द ग्राउंड। जब क्या होता है, बहुत नीचे ज़मीन के नीचे से माइनिंग नहीं करने के बजाय this picture shows strip mining. Up strip mining, instead of creating one large pit in the ground, long narrow strips are dug out by first removing a long strip of overlaying soil and rock, or is dug out and the soil and rock are filled back with the soil. ओके और इस तरह से जब एक स्ट्रिप की तरह पूरे के पूरे एरिया पर स्ट्रिप बनती चली जाती है जब मिनरल्स वहाँ से निकाला जाता है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप माइनिंग. वन अनदर माइनिंग क्या होता है कि सम मिनरल्स आर फाउंड वेरी डीप बिलो द अर्थ सरफेस. बहुत ही अंदर सरफेस के मिनरल्स कुछ मिलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फीट डीप, बहुत नीचे गहरे. टू एक्सट्रैक्ट दीज मिनरल्स अ डीप वर्टिकल ट्यूनल और shaft with an elevator is made from the surface down to the bottom of the mine. Okay, and this process is called shaft mining. The walls of the shaft mining are reinforced with wood and ventilation. Shafts are created to provide air to the miners underground. The minerals are extracted to the ground level through the shaft, and shaft mines are the deepest mines. It means जब बहुत thousands of feet, बहुत ही गहरे, बहुत ज़्यादा नीचे गहरे जब मिनरल्स को निकाला जाता है तो that process is called shaft mining. Okay, so now students, in this video part 1 we have studied about the minerals, okay, the types of minerals and extraction of minerals. Okay, and in the next video part 2 we will read about the natural resources and also the some uses of minerals also. Okay, got it?